our today's webinar, which is for unlocking design automation with DriveWorks Solo. So, yeah, uh, in today's webinar, I will be generally presenting the capabilities of DriveWorks Solo and what can you do and what can you achieve and what problems of your designer's daily life it will solve with its solutions. So let me first introduce myself. My name is Swapnil Surve, and I'm working at Engineering Technique as an 3D experience implementation engineer. So today's presentation will mostly be on the SolidWorks, another part of SolidWorks, which is called DriveWorks, and of course we are authorized resellers for this particular add-in for the software, which is DriveWorks. And on today's on today's webinar, we will be focusing on DriveWorks Solo, which is part of DriveWorks portfolio. So generally, we do have three kind of versions in the DriveWorks, which is DriveWorks Express, DriveWorks Solo, and the DriveWorks Pro. So DriveWorks Solo is basically an intermediate level of solution which DriveWorks provides. So you can use it for automations and your document generations and other things. So how do we use it? We will see in today's presentation as well as for today's agenda. This will be our today's agenda, as in why design automation. If we are talking automation, we need to see why it is important, how DriveWorks will help with you, help you in this, and then we will see an example as well as how does DriveWorks Solo works and the benefits of using DriveWorks Solo. Because this is a short presentation and a short seminar, so we will be just looking at some basic functionalities and some quick recaps or some quick shots so you can understand the uh, working of the DriveWorks better. So yeah, let's jump into our first topic, which is why design automation. If we think about it, what are the challenges that you usually face when you are working manually, right? अगर आपके पास बेसिकली होता क्या है कि हम बहुत सारी कंपनियों में जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप देखें तो जनरली यू हैव अ मास्टर असेंबली रेडी विथ यू, राइट? आपके पास एक मास्टर असेंबली रेडी होती है, बस आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से आपके छोटे छोटे चेंजेस जो भी आपके कस्टमर्स आपसे रिक्वायर करते हैं, you do those changes and resubmit it, right? So that is the first point. Second point also same thing. आप अलग अलग वर्जन्स क्रिएट करते होंगे, अगर आपको पार्ट में चेंजेस करने हैं आप उसके अलग अलग वर्जन्स मैन्युअली ये सब चीजें करनी पड़ती है। पार्ट्स में चेंज हो गए, मॉडल्स में चेंज हो गए, तो आप ड्राइंग्स में चेंज करते हो, राइट? जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिपीटेटिव ड्राइंग चेंजेस आपके असेंबली स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज होते हैं, तो आप मैन्युअली बॉम्ब जनरेट करते हो। सो इन सब में क्या होता है कि रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स, ऑफ कोर्स आदमी है, गलती तो हो सकती है, राइट? Sometimes it is a small mistake. As long as it is a small mistake, it is okay, it is repairable, but we don't want any big mistakes, right? Otherwise it can cost us a fortune in the manufacturing and all those things, right? And this process is also time taking, right? जैसे हम जी रहे हैं वैसे मैनुअल चीजें हर चीज में टाइम लेती ही है। और आपके डिजाइन पर्सनल्स यानी कि डिजाइनर्स और वगैरह की जो है वर्किंग आवर्स और मेंटल कैपेबिलिटी भी बहुत इफेक्ट करता है, विच इज stated in engineering resources consumed, right? So these are just some of the problems, not every problems, but these are mainly the problems which can cause you or your company your productivity, right? So how to solve it? So just think about it कि अगर आपकी डिजाइन अपने आप चेंज कर सके, जैसा आप इनपुट दो, उस इनपुट के बेसिस पर अगर डिजाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, ड्राइंग्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, राइट? जैसा कि मैंने इस स्लाइड में दिखाया हुआ है ऑलरेडी कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि एक सॉल्यूशन है कि जो रूल्स एंड लॉजिक्स का यूज करके अगर आपकी कैड और ड्राइंग जो है वो ऑटोमेट करके दे सकता है, राइट?
कैड और ड्राइंग तो ठीक है, वो आपको बॉम्ब भी जनरेट करके देगा, और बाकी के जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कोड्स हो गए वगैरह वगैरह, कवर लेटर्स हो गए वगैरह वगैरह, वो भी आपको खुद ही जनरेट करके देगा. यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द फर्स्ट असेंबली, आई मीन द मास्टर असेंबली फर्स्ट, and rest of the other work it will do based on your inputs, right? So DriveWorks is also such a software which can help us in this. Yeah. So as I said, what is DriveWorks? So DriveWorks is nothing but a tool for automation, right? It is a tool. It will work as you command it. Okay. There is no such thing. If we are talking about automation in designing, it doesn't mean कि वो मुझे पूरा पार्ट, मैं सिर्फ लिखूंगा कि मुझे ये पार्ट चाहिए और वो मुझे बना के दे देगा. इट इज नॉट लाइक दैट. अगेन, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी मास्टर असेंबलीज वगैरह क्रिएटेड होंगी, उसी में हम रूल्स अप्लाई करेंगे, और उन्हीं रूल्स की हेल्प से हम ऑटोमेशन करेंगे, और हमारा काम फास्ट कैसे हो सकता है, we will see about that. Okay. So DriveWorks, of course, it will help you in your design automation, product configuration. You can create n numbers of configuration again by using DriveWorks, and it has rule-based engineering, so you don't have to worry about anything. If you have feeded proper rules and proper algorithms, then it will work as fine as good. Then documentation is also automated, and once again your consistency and accuracy is increased by leaps and bounds. Okay. And then faster time to market, because this is a fully automated process. Okay, you just need to give it the inputs, and it will generate everything as per according your inputs, and give it to you ready on the platter, right? So DriveWorks will help you with all of these. So here is an example which I have configured using the DriveWorks Solo application, and I will show it to you. It is just an example. We will look at how it works behind the scenes after this. First, let's just see user experience of how you will do this process, like how you will create multiple configurations or multiple models from a master assembly. So as you can see here, uh, we can just give the basic inputs and everything here on the on SolidWorks only. This is our SolidWorks window only, and we are currently working in as task pane. As it is an add-in, it will we can just directly generate any kind of assembly according to our requirements. And as we can see here, it will directly generate your preview, as well as it will automatically scale your drawings, say make changes in your drawings, your bombs and everything. You can see the reports of the generation of parts, assemblies and drawings, as well as check out your quotations, your bombs, everything in just one click. Okay. It is all only away from one click after giving your inputs. So and one more thing, you can do this again and again. आप ये बार बार कर सकते हो, राइट? हर बार आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना है. फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह अंदर डाले होंगे, जो भी आपके एडिंग्स वगैरह है या फिर जो भी है, वो आपका ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा. सो दिस इज द यूजर एक्सपीरियंस, मीन्स के after configuring the master assembly with rules and everything, with form controls and rules, it will look something like this. But what happens behind the scenes, we will take a look at that. So how does it really work? So there are basically four steps for DriveWorks to work. First is capturing, second is form creation, third is rule creation, and the last one is design generation, which you just saw. Okay. So the first three steps, which are very important for DriveWorks, may it be any version of DriveWorks, like Express में भी ये सेम चीजें होती है, कैप्चर, फॉर्म एंड रूल. देन इसके जो हायर वर्जन है सोलो में और प्रो में, तीनों में सेम चीजें है, बस थोड़ी फंक्शनैलिटीज अलग अलग रहती है, राइट? So let's talk about, we will talk, take a look at all of these steps one by one. So first हम कैप्चर स्टेप जो है वहां पे देखेंगे कि हम करने क्या वाले एग्जैक्टली. So in the capture step,
We just need to capture our assemblies, parts, drawings and everything. जो भी हमें change करना है, if we are changing one thing, then it is probably that if we are changing one dimension or one feature in our assembly, all the other feature which are impacted because of that can also change, right? सो हमें वो सारी असेंबलीज, वो सारे पार्ट्स सब कुछ कैप्चर करना होता है। और उस हिसाब से हम डायमेंशंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डायमेंशन हम कैप्चर कर सकते हैं किसी भी पार्ट के, फीचर हम कैप्चर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, वी कैन कैच एवरीथिंग विच इज रिलेटेड इन सॉलिडवर्क्स। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। ओके, सो एज यू कैन सी, मैं अभी यहाँ पे अपनी सॉलिडवर्क्स की विंडो में हूँ और मैं टास्क पेन में जाता हूँ तो मुझे ड्राइवर सोलो का एक टैब दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस रहेगा और यहाँ पे कमांड मैनेजर है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कमांड्स यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे कह रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। सो आई कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और ओपन माई लास्ट वर्क प्रोजेक्ट। So I am currently opening my last project. So project is again a very important term. If I want to open an assembly, I just need to double click on that assembly. और जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल ड्यूटी ट्रेजर असेंबली पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, वो असेंबली मेरी सॉलिडवर्क्स में ओपन हो जाएगी, राइट? नो नीड टू गो एनीवेयर टू ओपन दिस असेंबलीज, यू जस्ट नीड अ प्रोजेक्ट रेडी फॉर इट। Okay, as soon as it is open, yeah, as you can see here, I have captured these different assemblies. Okay, if I'm making changes, which assemblies will change is annotated here, and those which are not captured will not show up. So यहाँ पे नीचे एक मॉडल है कैप्चर मॉडल्स करके, राइट? अगर मैं वहां पे जाता हूँ तो मुझे जो मैंने टिक की हुई असेंबलीज है वो सारी असेंबलीज मुझे यहाँ पे दिखेगी, और मुझे कुछ ओपन करना है वंस अगेन, एंड आई जस्ट नीड टू डबल क्लिक इट। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ वो पार्ट वहां पे मुझे ओपन हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डायमेंशन फीचर कैप्चर किए हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ, लैशिंग रिंग कटआउट, और एक लैशिंग रिंग कटआउट का पैटर्न है जो कि हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको कुछ नई चीज या फिर नया डायमेंशन लेट्स से कि अगर कैप्चर करना है, तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे किसी भी फीचर पे, आपको सारे डिमेंशंस वगैरह यहाँ पे दिखेंगे। डिमेंशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एड्रेस उसका आ जाएगा, और मैं उसको नेम दे सकता हूँ। नेम इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेंथ और विड्थ दिया है, सिमिलरली मैं कुछ भी दे सकता हूँ डिमेंशन को या फिर फीचर्स और मेरे पैटर्न्स को। सिमिलरली मैं यहाँ पे डायमेंशन और फीचर्स के साथ साथ कस्टम प्रॉपर्टीज, अगर यहाँ पे कोई कस्टम प्रॉपर्टीज है तो वो, ड्राइंग्स अगर मुझे कैप्चर करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी कैप्चर्ड नहीं है तो आप ब्राउज की हेल्प से कर सकते हो। ओके, एंड इसी तरह से आप और भी बहुत सारी चीजें कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि अगर इस पार्ट को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेसमेंट मॉडल जो कि नीचे दिखाया हुआ है वो भी आप कैप्चर कर सकते हो। ओके, सो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने का हमारा पर्पज यही है कि कैप्चर करते ही हम इसको रूल्स वगैरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, मेरे पास अगर कैप्चर करने के बाद मेरे पास कोई चीज ही नहीं जिसको मैं चेंज करूंगा, तो वो वर्क कैसे करेगी, राइट? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कैप्चर dimensions or features which you want to show or not to show, all these things. Okay, then next step पर आता है। next step is form creation. So what is form creation? कि मैंने चलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में जो भी था कैप्चर वगैरह करना जो भी था वो सब कर लिया, बट मुझे चाहिए होगा कि मेरा यूजर मुझे कुछ इनपुट दे रहा है। अगर वो मुझे इनपुट ही नहीं दे रहा है तो मैं आपको आउटपुट क्या दूंगा? सो फॉर्म इज नथिंग बट एन is a kind of input you can say which we take from the user. हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हो गए, डेट्स हो गए, ऑप्शंस ऑप्शन बटन हो गए, स्लाइडर्स हो गए वगैरह वगैरह। we can use all these kinds of inputs to take input from our end user or from our customer, and then we can set up rules. So ये फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। once again I am in the part, देन लेट्स सी, यहाँ पे कमांड मैनेजर में मुझे प्रोजेक्ट डिजाइनर करके एक बटन है, मैं जैसे ही वहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट डिजाइनर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट पेज में नीचे देखोगे तो फॉर्म नेविगेशन है, वो थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले फॉर्म डिजाइन पे आते हैं। फॉर्म डिजाइन पे अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे फॉर्म्स है, फॉर्म पेजेस है एक्चुअली, डेमो, फीचर, डिटेल, एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रास 2, एक्स्ट्रास 3, समरी, एटसेट्रा, राइट?
अभी जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर नेम है सपोज मेरा, मैं वहां पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं इनपुट लूंगा एज अ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर। डिफरेंट काइंड है यहाँ पे, पिक्चर बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है। यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। देन जैसे कि यहाँ पे डिटेल फॉर्म है, तो डिटेल फॉर्म में ये जो यहाँ पे स्लाइडर्स लगे हुए हैं वो भी एक इनपुट ही है। आप यहाँ पे ऊपर स्लाइडर का बटन देख सकते हो, आप वहाँ पे क्लिक करके स्लाइडर का वैल्यू सेट कर सकते हो। इसके अलावा कॉम्बो बॉक्स में अगर आप देखोगे, लेट मी गो टू द कस्टमर डिटेल्स फॉर्म। यहाँ पे कंट्रीज का एक पूरा बना हुआ है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्लाइड करना है, मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। टेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, then I can go through all these options, okay, by clicking on test. If I off the text button again, then फिर वापस से मुझे उसे फॉर्म को ही कैप्चर करने देगा। आप यहाँ पे देखोगे तो लिस्ट कहाँ से है, तो यहाँ पे बिहेवियर्स है, और बिहेवियर्स में मुझे एक आइटम्स टैब है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये जो थ्री बटन्स दिख रहे हैं वहां पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑल फंक्शन का यूज किया हुआ है। लिस्ट ऑल फंक्शन इज जनरली कि एक टेबल है, आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो लिस्ट ऑल फंक्शंस को। एक टेबल है, और टेबल कहाँ है मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेज में डिफाइन टेबल्स है। ओके, यहाँ पे कंट्रीज करके मैंने टेबल या फिर एक्सेल, यू कैन कॉल इट वॉट एवर। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये सारे मेरे फर्स्ट कॉलम जो है, ए कॉलम, वहाँ पे मेरे कंट्रीज डिफाइन की हुई है। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ इस टेबल को वी लुकअप किया था। आप वी लुकअप फंक्शन जानते होगे, राइट? इट इज सिमिलर टू दैट। ओके, देन ये सारे फॉर्म्स है, तो मैंने कहा था कि फॉर्म नेविगेशन बाद में देखेंगे, तो यहाँ से फॉर्म स्टार्ट है। सो ये डिटेल्स, ऑप्शन एक्स्ट्रा, ऑप्शनल एक्स्ट्रा टू, ऑप्शन एक्स्ट्रा थ्री, ये सब क्या है कि ये मेरा एक नंबर डिसाइड करता है कि मेरे फॉर्म्स किस नंबर में आएंगे। मैं जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ वैसे, राइट। और डिफाइंड वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ डिफाइन किए हुए, जैसे कि लेंथ हो गई, साइड पैनल हाइट हो गई, और विड्थ हो गई। यहाँ पे देख सकते हो मैंने उनको वैल्यू भी दे के रखी है, राइट। ये हमें आगे आगे जाके काम आएगा। रूल क्रिएशन में जो है ये चीजें हमें काम आएंगी। वेरिएबल जैसे हमने टेबल डिफाइन किए थे, वैसे हम वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और वो फॉर्म हमें दिखेगा हमारे सॉलिड वर्क्स के टास्क पेन में। ओके, सो दिस इज द primary functioning of the form to collect the data from the user. Okay, and you can create in different ways. As I said, यहाँ पे इमेज बॉक्स वगैरह आपको सब मिलेगा। जो भी इमेजेस वगैरह ऐड की हुई थी वो उसी के हेल्प से की हुई थी। एंड अगेन दिस इज जस्ट अ शॉर्ट, this is a short webinar, so I won't be going in detail. But then the next step is rules creation. So let's see how the rules are created according to our NLT. So let's see here. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं वापस से मेरे प्रोजेक्ट डिजाइनर में ही हूँ। प्रोजेक्ट डिजाइनर में फॉर्म डिजाइन में पहले हम देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। ऑप्शनल एक्स्ट्रास थ्री फॉर्म में मैं अगर जाता हूँ तो वहाँ पे लैशिंग रिंग्स करके एक मेरे पास एक चेक बॉक्स है। टेस्ट में जाके मैं इसको टिक या फिर अनटिक कर सकता हूँ। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक है तो फिर ट्रू, नहीं है तो फिर फॉल्स। ये दो वैल्यूज मेरे पास आएंगी, राइट। अगर मैं तीसरे स्टेज में मॉडल रूल्स में जाता हूँ तो मेरी कैप्चर्ड सारी असेंबलीज और ड्राइंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अब मुझे चाहिए मेरा फ्लोर प्लेट, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। और यहाँ पे मुझे लेंथ, विड्थ, लेसिंग रिंग, कटआउट और पैटर्न, दोनों जो भी चीजें हमने कैप्चर की हुई थी वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। डायमेंशन है या फिर फीचर है सब। और मैं जैसे यहाँ पे वैल्यू और रूल्स है, मैं रूल्स पे डबल क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे DW वेरिएबल लेंथ, जो कि मैंने प्रीवियसली बताया हुआ था कि वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है लेंथ करके। सो जो हमने लेंथ सिलेक्ट की थी इसके लिए, वो हमें यहाँ से मिलेगी। मैं जैसे ही वेरिएबल्स पे जाके यहाँ पे डायमेंशन लेंथ पे डबल क्लिक करूंगा, मुझे वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैथ ऑपरेटर प्लस का यूज किया है। और अगर मैं ओके करता हूँ, पहले 3050 वैल्यू थी, जैसे ही +50 किया वैसे ही 3100 हो गया, राइट। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप माइनस का यूज कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, वट एवर मैथमेटिकल साइन यू वांट टू यूज। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लॉजिक बेस्ड रूल भी आप दे सकते हो। ये विड्थ का रूल है, विड्थ के लिए रूल्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे लैशिंग रिंग कटआउट के लिए जो है यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज किया गया, जो कि लॉजिकल फंक्शन है।
यहाँ पे आप यहाँ से सीधा फंक्शंस में से इफ फंक्शन को यूज कर सकते हो, और यहाँ पे दिया हुआ है क्लैशिंग रिटर्न्स, मतलब अगर उस फॉर्म में मैंने ट्रू यानी कि चेक किया हुआ है उसको, तो मेरी पार्ट में से ये अनसप्रेस रहेंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो सप्रेस हो जाएंगे, मतलब कि वो मुझे असेंबली में नहीं दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इफ फंक्शन लुक लाइक्स। और यहाँ पे जैसे ही आप अलग अलग पार्ट्स पे या फिर अलग अलग असेंबलीज को चेक करते जाओगे, वैसे वैसे आप उसमें क्या क्या कैप्चर किया हुआ है डायमेंशंस, फीचर्स, और उनकी पर्टिकुलर उनके लिए रूल्स क्या आप देना चाहते हो, वो आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ओके, so this was the part where we give rules to our मॉडल और our मास्टर असेंबली। ऐसे एक एक पार्ट्स और एक एक असेंबली को हम सब असेंबलीज को रूल देकर हम पूरे असेंबलीज को सेटअप कर सकते हैं मास्टर असेंबली को, कि जिससे यहाँ पे इनपुट डालने पर वो हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट दे। ओके, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो सिंपल है, जनरेट डिजाइन, राइट। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे आप इनपुट डालिए, फॉर्म्स है, फॉर्म फिलअप कीजिए, यहाँ पे इनपुट डालिए। अगर यहाँ से नहीं ठीक से आ रहा है तो मैं सीधा डबल क्लिक करके भी डाल सकता हूँ, राइट। स्लाइडर सिलेक्ट करके भी डाल सकता हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू यूज, राइट। आई कैन सिलेक्ट द extras which I want to use, एंड देन अपॉन क्लिकिंग नेक्स्ट यहाँ पे वो मेरे लिए प्रीव्यू जनरेट करेगा, मेरी प्रीव्यू कैसा दिखेगा। और जैसे ही मैं इसको ओके दबाता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे मेरे स्क्रीन पे लाके दे देगा। और यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स भी चेक कर सकता हूँ कि सारे ड्राइंग्स वगैरह सब ठीक से जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में अगर मुझे बॉम्ब देखना है, मैं यहाँ से बॉम्ब डायरेक्टली फेच आउट कर सकता हूँ, राइट। मैन्युअली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बॉम्ब के अलावा अगर मुझे कोड चाहिए जो कस्टमर को सबमिट करना है, तो मुझे कोड भी यहाँ से मिल जाएगा, राइट। This is again, bomb and code generation are different level of things. You need to first adapt to the basic things which are currently there in DriveWorks Solo. Okay, so I'm not going in detail for all those details, but if you want to know about this, I will be मैं यहाँ पे last में कुछ links दे दूंगा. Once again, first look at let's first look at conclusions. So, what is the conclusion? Means why do we need to use all these things like DriveWorks Solo, right? What will it help us with? So it is obvious, right? कि हमें टाइम सेव करके देगा। जो मैन्युअली हम काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक्यूरेसी इंप्रूव होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेस्ड है, बिल्ड इन रूल्स वगैरह है, तो आपकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाली है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगी, हमारा टाइम बच रहा है, हमारा एक्यूरेसी परफेक्ट हो रही है। सो इट इज अ गिवन दैट कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हांस होगा। आपके जो जैसा कि पहले बताया था, कस्टमर रिक्वायरमेंट से लेके जो फाइनल बॉम्ब जाता है, उसके बीच का जो भी आपका टाइम है, जो भी आप दिन लेते हो, वो आप सिर्फ कुछ घंटों में चेंज कर सकते हो, राइट। सो इससे आप अपने कस्टमर्स को कस्टमर एक्सपीरियंस भी एनहांस कर सकते हो। उसके अलावा रिड्यूस कॉस्ट, जैसा कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था कि यू नीड टू assign your multiple engineers for this work, right? It is just simple changing some dimensions and changing some features. That's all. इसके अलावा ज्यादा कुछ वर्क नहीं है, बट उसके लिए भी स्टिल बहुत सारा टाइम जाता है, क्योंकि वो मैन्युअली करने में बहुत देर लगती है। और अगर उसमें भी कम देर लगती हो तो ड्राइंग्स तो है ही अपने पास। ड्राइंग्स में भी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं प्रोडक्शन में देने से पहले, सब कुछ करने से पहले। सो इट कैन हेल्प यू विद ऑल दोस थिंग्स, राइट। So as I said, मैंने यहाँ पे कुछ links दी हुई है। If you want to take a screenshot, you can take a screenshot of this particular page. So यहाँ पे मैंने 3 वेबसाइट्स पर्टिकुलरली दी हुई है, जो कि पहली वाली जो है वो ड्राइवर्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जहाँ पे सॉल्यूशन, कस्टमर स्टोरीज, रिसोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे। दूसरी जो है वो लर्निंग पोर्टल की है, तो यहाँ से अगर आपके पास ड्राइवर्स का अकाउंट है तो आप यहाँ पे जाके ड्राइवर्स खुद से ही सीख सकते हो। ओके, एंड देन ड्राइवर्स कम्युनिटी की जो थर्ड लिंक दी हुई है, तो वहां पे जाके आप अदर ड्राइवर्स यूजर जो हैं, जो कि पहले आपसे पहले यूज कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन आस्क देम क्वेश्चन। और अगर उससे ज्यादा है तो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस, राइट। So yeah, this was it for this particular session of DriveWorks Solo. Again, this was not a long session, I know,
because I had to show Drivux is again capable of many things, but I had to cut it down to 30 minutes. So that's why it is like that. But if you want to know other things, or if you want more information from our side, you can directly connect with us via our marketing team. Okay. So yeah, that was it for today's session. Thank you very much everyone for attending.